दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगमप्ताप्तं यत् किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत् सर्वत्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वसृष्टिशिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदान्तं सूर्यो तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानशक्ति समाप्त तत्वमाला भुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबन्ध विधायिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शोषणं भवसिन्धो च ज्ञापनं सारसम्पद गुरोपादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरोरधिकं न गुरोरधिकः अनातरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्थ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा श्री। Good evening to all and all present here. Let us start today's program by seeking the blessings of Lord Ganesha and lighting the lamp. I request all the chief guests and the dignitaries to light the lamp and seek the Lord of Ganesha.
Today, we all have gathered here to celebrate our 21st Annual Day function. I am highly honored and I feel privileged to have been given the opportunity to address everyone on this very special occasion. The motto of our annual day is to encourage students to participate in various events and showcase their talent. Our school has always believed that the children are the future that will help in making our country great and encourage their idea. We conduct an annual day every year. Students from many classes will also be awarded, and we will be encouraging them through this. Annual day is not only for those students who are good at academics and sports, as it encourages all students to do better in school in whatever field that they like. I am sure everyone will grow up to achieve success and will help in contributing to the betterment of society. Annual Day is an important occasion for all of us because, apart from the fact that it celebrates the success of the student, it also highlights the success our school has achieved from the past 22 years in the field of education. This platform is also an opportunity to welcome our chief guest of the evening today. Today, on this occasion, we have invited a special guest who was very kind enough to accept our invitation despite having a very busy schedule. He has been in Maharashtra Police Service since last 22 years. His journey of bravery and inspiration started when he was selected as Direct Service Police Deputy Superintendent. Through years 2003 to 2014, he has served in different parts of Maharashtra like Trambakeshwar, Akola and Sangli, reducing the crime rate significantly in these areas and making some most wanted arrests. Yes, he is a real life hero. In the year 2014 to 2016, he served as Superintendent of Police and was present in highway safety team and properly planned the traffic on the highway to create public awareness regarding the traffic rules so that citizens will follow the traffic rules. In the year 2021, he became an IPS officer and since then, he is working as full force as Superintendent of Police in Palghar from 2022. On behalf of Shri Ganesh family, I extend a very warm welcome to the most dynamic, heroic, inspirational IPS Shri Balasaheb Bhanudas Patil. I would like to call upon chief guest on the stage and other dignitaries. Our next guest is the very known leader among our area, always working mercilessly for the welfare of people. He has served as Division Chief, Taluka Chief and District Chief in Shiv Sena's Bharatiya Vidyarthi Sena for 4 years. He has ministered in Maharashtra Navnirman Sena as Palghar District Chief from 2006 to 2019. He has been working as Shiv Sena's district head for the past 7 months. Put your hands together for Shri Kundan Sankhe as we welcome him to this evening.
an inspiration to all the ladies, women, and girls present here. I present my warm welcome to our next guest, Srimati Trupti Sankhe, who is as kind as Mother Teresa and as fierce as Lakshmi Bai. She is serving as the Sarpanch for the village Kolwadi. We welcome you, ma'am. I would like to show my gratitude to the guest of our honor for gracing this evening with their presence and making it even more memorable despite their busy schedule. Now, the most awaited part of the evening is about to start. But for that, I need full attention of our parents, audience on the stage, and give me a huge round of applause for the evening to start. थोड़ा और जोर से पेरेंट्स, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है. We need more energy. Yes. So this was the welcome, the formal welcome from our side. But are you ready for the welcome in kids style? Yes, नहीं आया मुझे, सिर्फ फ्रंट रो. Come on, are you ready? बच्चों के स्टाइल में वेलकम के लिए. और ये हमारे नर्सरी के बच्चे, like these are these little toddlers. So give them a huge round of applause as an inspiration so that वो stage पे आपको उतना ही energy से perform करके दिखाए. Yes. Okay. So the next song is the welcome song from our nursery kids. Good evening to all present here. My name is Yashashri Dhruv Pandey. My name is Gauri Anurag Chaturvedi. Heartily welcome to all of you for this annual day celebration. Plato once said music is a moral law. It gives law to the universe, wing to the imagination, to the mind flight, to charm and to mind flight, to life and to everything. To begin this auspicious event, here comes to school presenting dance performance nursery group by welcome song. So put your hands together to the welcome on stage. Thank you. Get over here tonight, I'll call you what you like. We'll make it such a night to remember all our lives. You let me call you baby, I'll really blow your mind. Oh boy, make your mind up, we're running out of time. Welcome, everybody come, welcome, welcome. To the party come, welcome, welcome. Everybody come, welcome, welcome. To the party come, welcome, welcome. Jump, jump, everybody. Welcome, jump, jump, everybody. Welcome.
बहुत लेट वेलकम, बट यस, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर नर्सरी किड्स। इनने पूरे डांस, थोड़ा डांस किया और फिर लास्ट में जब सिर्फ जंप करना था वो बहुत अच्छे से किया। गिव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज। लड्डू जिनका भोग है, मूषक है सवारी, सुख करता दुख हरता जग पालनकारी। मेरा नाम भार्गव योगेश भोईर है। मैं सीनियर केजी में पढ़ता हूँ। हमें ऐसे इंसान की जरूरत है जो हमें भव्य रूपी सागर से आगे ले जाए। हमें ऐसे नेता की जरूरत है जो हमें प्रगति के पथ पे आगे ले जाए, जीवन में हमारा विकास करे और हमको यशस्वी बनाए। माँ शक्ति से यह प्रार्थना करनी है कि हम सबको जीवन में यशस्वी बनाए। धन्यवाद। My name is Bhargav Yogesh Bhoi. Presenting a dance performance Khalasi by third standard performance Saidam Group. धन्यवाद। आजकल सोशल मीडिया पर खलासी सॉन्ग काफ़ी ट्रेंड कर रहा था और वो गाना किसी को समझ आया हो या ना आया हो, लेकिन उस गाने पर रील्स तो लगभग सभी ने बना ही लिए थे। बट आई एम श्योर, बट यू शुड नो दिस कि ये बहुत ही एक मीनिंगफुल गाना है। ये गाना जो है काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। इस गाने में खलासी शब्द का मतलब नाविक से है, जो चुनौतियाँ पसंद करता है, जो लगातार नया करने को उत्सुक रहता है, समुद्र में नई नई चीज़ों को खोजता यानी कि ढूंढता है। ऐसा जोशीला नाविक कौन हो सकता है, उसे खोजो। गाने में कहा गया है कि सच्चा खलासी वही है जो समुद्र में अगर फंधारी नाग हो तो उसका भी सामना कर सके। समुद्र के किनारे चीज़ें तूफान में तहस नहस हो जाती है, लेकिन वही ठहरता है और रुकता है जिसके पास साहस और अच्छा शक्ति होता है। सो प्रेजेंटिंग टू यू द न्यू ट्रेंडिंग सॉन्ग खलासी। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। गोदिलो तमे गोदिलो 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 तमे गोदिलो गोदिलो નથી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોદિલો ગોદિલો તમે ગોદિલો 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 તમે ગોદિલો ગોદિલો નથી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોદિલો ઓ કાંઠેથી જા તું જા દરિયેથી જા તું જા કાંઠેથી જા તું જા ગોદિલો તમે ગોદિલો ગોદિલો કાંઠેથી જા તું જા જા દરિયેથી જા તું જા કાંઠેથી જા તું જા ગોદિલો તમે ગોદિલો ગોદિલો એ વેવા દો જા વહીએ રેવા દો જા સહીએ વેવા દો હવે રેવા દો હવે નથી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોદિલો એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને એના સામને ઠેકાણા મને દઈ દો ને એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને ગોદિલો તમે ગોદિલો ગોદિલો એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને એના સામને ઠેકાણા મને દઈ દો ને એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને ગોદિલો તમે ગોદિલો ગોદિલો खेवैया ओ खेवैया हम बोरे हाय हाय हैया निकली जा लेने तू तारी नैया हम बोरे हाय हाय हम बोरे हाय खेवैया ओ खेवैया हम बोरे हाय हाय हैया निकली जा लेने नैया हम बोरे हाय हैया વેવા દો જા વહીએ રેવા દો
ગોતી લો અરે કિનારા તો સ્થિર અને સલામત હોય, પણ માણસ એના માટે નથી સર્જાણો. અરે ખારવો ખલાસી તો ઈ કહેવાય કે જે ફણીધર નાગ જેવા દરિયાની સામે ઉતરે અને ઉતરવું પડે, કારણ કે કિનારે તો ખાલી પડે નાની નાની બગલીને, નાના એવા સપનાની રેત વાળી ડગલીને. તોફાનો તરાપ મારે હાલે સાવ આપી જાય તોય જેની હિંમત અને આમ નહીં આપે એવો ખારવો ખલાસી, એવો હાડનો પ્રવાસી, એવો ખારવો ખલાસી, એવો હાડનો પ્રવાસી. ગોતી લો ગોતી લો ગોતી લો ગોતી લો ગોતી લો ગોતી લો. પોતાના જ દરિયામાં પોતાની જ ડૂબકીથી જાતનું અમૂલ મોતી લો. એ પથ્થી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી. ગોતી લો એવો કોણ છે ખલાસી મને, ઓકે ભૈયા કોણ છે પ્રવાસી મને, હાય હાય હૈયા કોણ છે ખલાસી મને. લઈ જા નૈયા તમે ગોતી લો એવો કોણ છે ખલાસી મને, ઓકે ભૈયા કોણ છે પ્રવાસી મને, હાય હાય હૈયા કોણ છે ખલાસી મને. લઈ જા નૈયા તમે ગોતી લો એવો કોણ છે ખલાસી મને, ઓકે ભૈયા કોણ છે પ્રવાસી મને, હાય હાય હૈયા કોણ છે ખલાસી મને. લઈ જા નૈયા તમે ગોતી લો એવો કોણ છે ખલાસી મને, ઓકે ભૈયા કોણ છે પ્રવાસી મને. હાય હાય હૈયા પથ્થી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી. ગોતી લો એ ગોતી લો તમે ગોતી લો ગોતી લો. હે મારી રૂમ ઝુમ કરતી આવી, હે મારી રૂમ ઝુમ કરતી આવી, આનંદ ઉત્સવને ગરબાની રમઝટ સાથે લાવી. હે મારી રૂમ ઝુમ કરતી આવી, હે મારી રૂમ ઝુમ કરતી આવી, ઝાંઝરને ઝણકારે મારી સખીઓ સાથે લાવી. મોતી વેરાણા ચોકમાં આવ્યા અંબે માં, ચોકમાં જગમગ થાય રે આવ્યા અંબે માં. મોતી વેરાણા ચોકમાં આવ્યા અંબે માં, ચોકમાં જગમગ થાય રે આવ્યા અંબે માં. ઉડાઓ લાલ ગુલાલ કે આવ્યા અંબે માં, ચોકમાં જગમગ થાય રે આવ્યા અંબે માં. वॉट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस. एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता आप प्लीज़ डांस, जिनका डांस हो गया उनको, वो बच्चों को लेने मत आए. हम सीरियल वाइज अनाउंसमेंट करेंगे, आप तभी ही बैक स्टेज जाए क्योंकि बैक स्टेज में फिर बहुत गर्दी हो जा रही है. सो नाउ जो वेलकम सॉन्ग के बच्चे थे उनके पेरेंट्स आप प्लीज़ बैक स्टेज आके किड्स को कलेक्ट कर सकते हैं. And I would like our chief guest Shri Balasaheb Bhanudas Patil and Sarpanch and Kundan Sankhe to come over the stage and address the dignitaries. नमस्कार. आजच्या या आपल्या श्री गणेश प्री स्कूल आणि नर्सरी ज्युनियर सिनियरमधील मुलांच्या आजच्या या ॲन्युअल फंक्शन करता
उपस्थित पालघर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक सन्माननीय बाळासाहेब पाटील साहेब, जमलेले सर्व पालकवर्ग, आताच आम्ही जेव्हा मध्ये आलो आणि पाटील साहेबांशी आम्ही चर्चा करत होतो आणि बघत होतो, त्यावेळेला थोडा वेळा आम्हीही स्थिरावलो, कारण जी लहान चिमुकली जी मुलं होती त्या मुलांचा जो वेश होता ते बघून कुठेतरी आम्ही ज्या स्ट्रेसमधून, आपले जिल्ह्यांची जबाबदारी साहेबांवर आहे आणि आम्ही थोडंसं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करत असतो, त्यावेळेला आम्हाला असं थोडंसं रिलॅक्स झाल्यासारखं वाटतं की आपण ये ना की कुठेतरी आम्ही आमच्या रोजच्या रुटीनमधून एक असा वेळ कुठेतरी देऊ शकलो की जिकडे एक कल्चर्ड शिकवलं जातं. शिक्षण हे महत्त्वाचं आहेच, परंतु त्या सोबत लहानपणापासून संस्कार, कल्चर जो सब जरूरी है. मतलब मी थोडंसं हिंदीमध्येही बोलेन कारण आपले हिंदी भाषिक वर्गही इथे आहेत. हमारे देश की कल्चर, संस्कृती ही अशी आहे की जिकडे आपल्याकडे कल्चरला, आपल्या वरिष्ठांना किंवा आपले पालकवर्गाला मान सन्मान देणं हे खूप महत्त्वाचं असतं आपल्या जीवनामध्ये, आणि ते आपला नेहमी आईवडिलांकडनं संस्कार मिळालेले असतात. परंतु आजच्या धावत्या युगामध्ये जसं शिक्षण पुढे होत चाललं आहे तसं सगळं हायटेक होत चाललं आहे, आणि अशा वेळेला आपण अगदी छोट्याशा वयामध्ये जेव्हा पहिल्या वेळेला आपण पोहोचतो नर्सरीमध्ये, तेव्हा जर चांगलं शिकवणारा शिक्षक असेल किंवा चांगली नर्सरी असेल तर मला वाटतं त्या, असं म्हणतात लहान मुलांचे पाय पाळण्यात दिसतात, परंतु मला वाटतं पाळण्यात फक्त पाय दिसतात, परंतु जेव्हा ते प्रत्यक्षात चालायला लागतात तेव्हा त्याने पुढे कसं यश संपादन केलं पाहिजे हे मला वाटतं शाळेतच शिकवलं जातं, आणि पहिली त्याची स्टेप असते नर्सरी. मला वाटतं आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपल्या ह्या संगीता साहू मॅडमचं आपण कौतुक करूया. आज मी विशेष आभार व्यक्त करतो आपल्या सर्व पालघर जिल्ह्यांच्या कायदा सुव्यवस्था. म्हणजे आज आपण जे पालघर जिल्ह्यामध्ये राहतो, इतकं मोठं औद्योगिक वसाहत आहे, एका बाजूला संबंधपणे आदिवासी बेट, ट्रायबल बेट आहे, एका बाजूला पूर्णपणे शहरी बेट आहे. अशा वेळेला आपण प्रत्येक एका कुठल्या ना कुठल्या प्रश्नांमध्ये आपण एकाच विभागाकडनं आपल्याला न्याय मिळेल ही अपेक्षा करत असतो. तो विभाग आहे पोलीस विभाग. म्हणजे आम्ही जेव्हा थोडं सामाजिक जीवनामध्ये काम करतो तेव्हा कित्येक लोकांना हे माहितीच नसतं की हा विषय पोलिसांचा नाही आहे, परंतु त्यांना एक असतं, कुठंतरी एक खात्री असते की आम्हाला जर कोण न्याय देऊ शकेल तर पोलीस विभागच देऊ शकतो. आणि त्याच्याकरता नेतृत्व करणारा जर लीडर जो असतो, जिल्ह्याचा लीडर असतो, ह्याच्यावर बरंच काय अवलंबून असतं. आणि माझ्याही इतक्या आतापर्यंतच्या सामाजिक जीवनामध्ये मी बरीच आमचे वरिष्ठांना, पोलीस अधिकाऱ्यांना बघितलं आहे, परंतु मी ते बाजूला आहेत म्हणून सांगत नाही, परंतु जेव्हा आपल्याला एक प्राऊड फिलिंग येते की आपल्या जिल्ह्याची सूत्र ही अशा एखाद्या लीडरकडे आहे जे ह्या जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक आहेत की जे आपल्या जिल्ह्याची कायदा सुव्यवस्था, शिस्त ही राहावी याकरता काटेकोरपणे प्रयत्न करतात. त्यामुळे आपल्या आदरणीय SP साहेबांचं आपण टाळ्या वाजून त्यांचं प्रचंड स्वागत करूया की आज त्यांच्या माध्यमातून आपला पालघर जिल्हा हा सुरक्षित हातामध्ये आम्ही दिलेला आहे. आपण जेव्हा क्लिप बघितली असेल तेव्हा आपण SP साहेबांसोबत त्यांचे जे चिरंजीव आहेत रुद्रांश पाटील यांचाही एक आपण फोटो बघितला असेल. तो मला वाटतं ब्रीफ केला गेला असेल असं वाटतं मला, पण तरी तुम्हाला सांगतो, अपन काही महिन्यांपूर्वी, गेल्या महिन्याभरात 2 महीना हम सभी लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा कि अपने देश के प्रति एशियन गेम्स जो हुए उसमें जो रुद्रांश पाटिल है, हमने नाम सुना कि हमारे देश के रुद्रांश पाटिल को गोल्ड मेडल मिला, लेकिन आपको सभी को ये जान के प्राउड होगा कि रुद्रांश पाटिल के पिताजी अपने पालघर जिले के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है और उनके बेटे हैं. मतलब एक जब हम आ रहे थे और हम मैडम के साथ में SP साहब को न्योता देने गए थे तो उन्होंने पूछा कि ये प्रोग्राम क्या है, तो मैंने बताया, मैडम ने ही बताया कि ये नर्सरी है और मुझे लगता है कि ये पूरे पालघर और बोईसर एरिया में इतनी बड़ी नर्सरी और इतने ज़्यादा बच्चे किसी के पास नहीं होंगे. एक विश्वास लेके लोग अपने बच्चों को नर्सरी में, श्री गणेश नर्सरी में डाल रहे हैं. तो बोलते कि वहाँ तो बच्चे होंगे, मैं किससे बात करूँगा. SP साहब बराबर ना आपने हमको बताया था. तो हमने तभी हम बात कर रहे थे कि आज की जो पीढ़ी है वो, आप सभी जो पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए,
मतलब एक बच्चा जब भी किसी के नॉर्मल फंक्शन में अपना पहला स्टेप किसी फंक्शन में या नर्सरी में रखने जाता है तभी उनके पेरेंट्स को साथ में होना ही पड़ता है। तो हमने सर को बताया कि सर आप जो पेरेंट्स है वो आज आपके सामने रहेंगे और आपके 2 शब्द उनको मार्गदर्शन मिलेगा तो उनके बच्चे आगे जाके क्या आजकल विजन इतना क्लियर है लोगों का कि अगर बच्चा 2nd में 3rd में 4th में 5th में होगा तो उसको मालूम रहता है कि मुझे क्या होना है। इतने आज के बच्चे एक एडवांस हो गए। तो मैं एसपी साहब का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात रख के ये जो बच्चों के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए और मैं मैडम को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हो और इसमें हमारे जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट है उनका कभी भी आपको सहकार लगेगा तो हम आपके हमेशा साथ में रहेंगे। और आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आज 29 दिसंबर 2023 है और 2 दिन के बाद 31 जाने के बाद में हम 1 जनवरी 2024 में प्रवेश कर रहे। आप सभी को मैं मेरे तौर पे आप सभी को आने वाले नई साल की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के घरों में सुख समाधान शांति ऐश्वर्य हो और आपको निरोगी दीर्घायुष्य मिले ये कामना व्यक्त करते समय अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं एसपी साहब को विनंती करता हूं कि आप अपना मार्गदर्शन करें। श्री गणेश प्री स्कूल ॲन्युअल फंक्शन याच्या निमित्ताने आज या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित असणारे सन्माननीय कुंदनजी संके साहेब, या स्कूलची संपूर्ण भागदौड सांभाळणारे सौ संगीता मॅडम, माझ्यासमोर उपस्थित या बोईसर आणि परिसरातील सर्व सुज्ञ पॅरेंट्स आणि ज्यांनी हा परफॉर्मन्स केला तो अतिशय सुंदर परफॉर्मन्स करणारे सगळे विद्यार्थी, त्यांना ट्रेन करणारे, सातत्याने मार्गदर्शन करणारे सर्व या ठिकाणचे शिक्षक बंधू आणि भगिनी, सुरुवात करतो हरिवंशराय बच्चनच्या 2 ओळीने। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। ये इतने बढ़िया परफॉर्मेंस जो बच्चे ने यहाँ पे किया है जिसका विटनेस हमें होने का भाग्य प्राप्त हुआ है। पुलिस उनके साथ आजू बाजू में कौन रहता है, एक तो विक्टिम या एक्यूज। इसी वातावरण में हम 24 आवर्स रहने वाले लोग इतने प्यारे बच्चों के साथ अगर कुछ वक्त बिताने का चांस मिलता है तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। मैं धन्यवाद करूँगा ये मैडम और इस प्रशासन से जिन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। मैं पहली बार कुंदन साहब को पूछ रहा था कि आज सही में प्री नर्सरी बच्चों के साथ मैं क्या बात करूँगा, उनको क्या समझ में आएगा। तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे पेरेंट्स भी आने वाले हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सामने रहेंगे और जिसका रोल सबसे बड़ा रहेगा। हर बच्चों के करियर में पेरेंट्स और टीचर्स का रोल बहुत ही अहमियत उसकी होती है। उसकी हर लाइफ के हर एक्शन पे ये किसके साथ पढ़ा हुआ है, कौन से स्कूल में पढ़ा हुआ है, उसका अंदाजा आ जाता है। आज ही हमने इंट्री में ही ये जो कल्चरल सब प्रोग्राम रखे थे, ये असल में अपनी धरोहर है, ये देश की धरोहर, ये भूलनी नहीं चाहिए। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पे तक्षशिला और नालंदा विद्यापीठ जो हज़ारों साल पुराने विद्यापीठ, ये हमारे देश के धरोहर है। पूरे दुनिया से लोग यहाँ पे आके पढ़ते थे। नालंदा विद्यापीठ में 90 लाख किताबें थे जो वहाँ की लाइब्रेरी में मौजूद थे। पूरे दुनिया से लोग वहाँ आके अपना ज्ञान प्राप्त करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से खिलजी के आक्रमण के बाद उसको जलाया गया, जो 3 महीने जलता रहा और हमारी पूरी धरोहर ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन दिमाग सर सलामत तो पगड़ी 50, हमारे दिमाग वैसे की वैसे रह गए। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है
उस सभी ताकतों में हमारे लोग सीईओ के पद पे, बहुत बड़े बड़े पद पे, जहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं, ऐसे पद पे विराजमान है। इसका कारण यही है कि इंडिया का जो धरोहर है वो कभी भूल नहीं सकते, और उसी के बदौलत हम लोग दुनिया पे राज कर रहे हैं। आप लोगों ने जिसका प्रदर्शन किया, वो संस्कृति हमारी बच्चों के अंदर बहुत, उसके पूरे लाइफ में उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम लोग वेस्टर्नाइजेशन होने के बाद हम लोग उनकी तरफ से देखते हैं कि वही सब लोग कर रहे हैं, उनका ही सब चीज़ें लेने जैसा है। लेकिन वेस्टर्न के लोग हमारे यहाँ पे आके हमारे साथ रह के हमारी संस्कृतियों को समझ रहे हैं, हमारे देश को समझ रहे हैं, और हम लोग उनके संस्कृति को समझ रहे हैं। उसमें से अच्छा क्या लेना है, बुरा क्या छोड़ना है, वो समझने की बात पेरेंट्स की है। हम लोग अपने बच्चों को बहुत कम उम्र में मोबाइल देते हैं। मोबाइल देना अच्छी बात है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी कौन से उम्र के बच्चों को देना चाहिए, ये पेरेंट्सने समजणे चाहिए। मी मराठीत बोलतो, आता 50% मराठी असल्यामुळे मराठी पण बोललं पाहिजे। लहान मुलाच्या हातामध्ये मोबाईल देणं म्हणजे एखाद्या लहान मुलाच्या हातामध्ये भरलेली गन दिल्यासारखी आहे। तुम्ही जर चुकीच्या पद्धतीने अतिप्रेमापोटी जर त्यांच्या हातामध्ये नेट असणारा मोबाईल दिला, तर तो मुलगा त्या मोबाईलवर काय करतो आहे हे समजणं खूप मुश्किल असतं। त्या मुलांनी जर या जगभरामधल्या चुकीच्या गोष्टी अंगीकारल्या, तर त्याचा परिणाम त्याच्या आयुष्यभर होतो। आईवडील घरामध्ये काय करतात हे लहान मुलं पाहत असतात। आपण स्वतःचं बिहेवियर, आपल्या पतीपत्नीमधली भांडणं, आपल्या घरामधले वादविवाद हे जर मुलाच्या समोर ठेवले, तर तो आयुष्यभर त्याच्या बॅक ऑफ द माइंड तो विषय राहतो आणि त्याची सायकोलॉजी बदलून जाते। आमच्याकडे बरेच गुन्हे हे बाल गुन्हेगार करतात। ज्यावेळेस आम्ही त्यांना विचारतो की असं प्रकार का घडला, तर त्याच्या पाठीमागे त्याच्या घरातील परिस्थिती कारणीभूत असते। त्याची आईवडील, त्याच्या घरामधले इतर सदस्य याची वर्तणुकीमुळे त्याच्या मेंदूवर त्याचा परिणाम झालेला असतो आणि त्याच्या हातून गुन्हे घडतात। त्यामुळे आपण घरामध्ये करत असणारे सगळी वर्तणूक ही लहान मुलं अतिशय जवळून पाहतात। आपलं कर्तव्य आहे की आपलं असं कुठलंही वर्तणूक असता कामा नये ज्याचा विपरीत परिणाम या मुलाच्या मनावर होऊ शकतो। सायबर क्राईम मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे। या सायबर क्राईमवर आळा घालायचा असेल तर योग्य वयामध्ये मुलाच्या हातामध्ये मोबाईल दिला पाहिजे, प्रशिक्षण देऊन दिला पाहिजे, आणि तो काय पाहतो आहे याच्यावर लक्ष दिलं पाहिजे। सध्या दुर्दैवाने आपल्या कालावधीमध्ये तसं नव्हतं, परंतु आता ड्रग्सचा विळखा पडत चाललेला आहे। मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स हे वेगवेगळ्या प्रकारच्या ड्रग्स हे मुलांच्यापर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, मुलांना त्या जाळ्यामध्ये ओढण्याचा प्रयत्न करत आहे। आमचं ड्रग्सचा सेल जो आहे, अँटी नार्कोटिक्स सेल, हा रात्रंदिवस त्यासाठी मेहनत करत आहे। परंतु आईवडिलांनी आणि शिक्षकांनी सुद्धा आपल्या मुलांवर लक्ष देणं गरजेचं आहे। तुमची मुलं अद्याप खूप छोटी आहेत, परंतु तुम्ही सजग पॅरेंट्स म्हणून याच्यावर लक्ष देणं खूप आवश्यक आहे। कारण आपला मुलगा दिवसभर बाहेर असेल तर त्याच्या बिहेवियर पॅटर्नमध्ये काय बदल होतात का हे पाहणं अत्यंत आवश्यक आहे। ड्रग्स घेणारी मुलं कुठलीही असतील तर त्याच्या वर्तणुकीमध्ये फरक पडतो। आईवडील जर मुलांशी संवाद साधत नसतील तर त्यांना कधीही समजणार नाही की मुलगा कशाच्या आहारी गेलेला आहे। मुलगा योग्य संगतीमध्ये आहे का, मुलगा योग्य संगतीमध्ये आहे का हे पाहणंसुद्धा आपलं काम आहे। जर तो चुकीच्या संगतीमध्ये असेल किंवा आईवडीलच रात्री 2 वाजता येऊन झोपत असतील तर मुलाला चांगली संगत लागण्याची शक्यता नाही आहे। तुम्ही ज्यावेळेस मुलगा बिघडला असं म्हणतो आपण, मुलगी बिघडली असं म्हणतो, त्याच्यापूर्वी आपण त्याच्यासाठी काय केलं आणि आपण काय उदाहरणं ठेवली हे पाहणं खूप आवश्यक आहे। मुलाचा कल हा लहान वयामध्येच समजतो। मुलगा कशामध्ये पारंगत होऊ शकतो हे आपण आणि शिक्षक यांनी एकत्रित मिळून मुलाचा कल समजून त्याला त्या फॅकल्टीमध्ये पाठवलं पाहिजे। बऱ्याचदा स्पोर्ट्समध्ये मुलांचं करिअर खूप चांगलं होऊ शकतं। आपल्या देशामध्ये ऑलिम्पिक सुरू झाल्यापासून आत्तापर्यंत इंडिव्हिज्युअल फक्त 21 मेडल मिळालेले आहेत। 142 कोटीचा हा देशामध्ये फक्त 21 मेडल इंडिव्हिज्युअल लेवलचे आपल्याला मिळालेले आहे। याचा अर्थ असा आहे की आपण खूप कमी पडतो आहोत। आपल्या मुलाला जर त्याच्यामध्ये टॅलेंट असेल तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण आर्थिक मदत करून मुलांना प्रोत्साहित करत आहे। आपण स्पोर्ट्स हा सुद्धा एक करिअरचा भाग म्हणून समजला पाहिजे आणि त्याला त्यामध्ये प्रोत्साहित केलं पाहिजे। खेळाडू कधीही अपयशाने खचून जात नाहीत।
जर तो खेळाडू असेल तर त्याला अपयश आलं तर तो निश्चितपणे त्याला सामोरं जातो आणि खेळाडू हा आयुष्यात जिद्दीने पुढे जातो. मुलांना नेहमी 7 गुड हॅबिट्स ऑफ ईगल हे समजून सांगितलं पाहिजे. ईगल पक्षी त्याच्या आयुष्यात 7 ज्या चांगल्या सवयी आहेत त्याची अंगीकार आपण केला पाहिजे. ईगल पक्षी काय करतो, तो सर्वात उंच उडतो. इतर पक्ष्यांपेक्षा, कावळे, चिमणी आणि इतर पक्ष्यापेक्षा, जे सर्वसामान्य पक्षी आहेत त्यांच्यापेक्षा उंच उडतो. त्यामुळं इतर ज्या छोट्या कटू गोष्टी असतात, वाईट गोष्टी असतात, जे कूटनीती करणारे लोक असतात त्यांच्यापासून तो दूर राहतो. तो इतक्या उंचीवर उडतो की फक्त त्याच्या लेवलचे लोकच त्याच्याबरोबर राहू शकतात. मुलांना नेहमी संगत चांगली ठेवणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. आपण जसं म्हणतो की टेल मी युअर फ्रेंड्स नेम, आय विल टेल यू हू आर यू. तू मला मित्राची नावं सांग, मी सांगतो की तू कोण आहेस ते. संगत ही पाहणं खूप आवश्यक आहे. चांगल्या विचाराच्या लोकांच्या बरोबर मुलांना जर ठेवलं तर निश्चितपणे त्या आयुष्यामध्ये यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही. ईगल हा नेहमी फ्रेश मांस खातो, कधीही मेलेल्या मांसावर तो जगत नाही. आपण आपल्या भूतकाळावर बऱ्याचदा वाईट विचार करून आपल्या बॅक ऑफ द माइंड विचार करतो आणि वर्तमान काळ खराब करतो. आपला भूतकाळ सोडून देऊन वर्तमान काळ चांगला जर जगला तर निश्चितपणे आपल्याला भविष्यात आयुष्य चांगलं जगता येईल. मी सर्व गोष्टी सांगणार नाही कारण हे पालक जे आहेत ते विद्यार्थ्यांचा परफॉर्मन्स पाहण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यामुळे तुमच्या ह्या रसभंग करण्याची माझी इच्छा नाही, परंतु पोलीस असल्यामुळे काही 4 गोष्टी चांगल्या सांगणं हे माझं कर्तव्य आहे आणि त्या अनुषंगानेच मी या ठिकाणी आपल्याला काही सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपण त्यातल्या चांगल्या गोष्टी घ्याव्यात. आपल्या मुलांच्या करिअरसाठी मी आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि या येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देऊन थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड आई एम श्योर कि हम सब सुन के बहुत ही इंस्पायर हुए रहेंगे. बट सिर्फ इंस्पायर ही नहीं होना है, हमें इसमें से जो हमने अभी सुना वो सीखा वो हमें घर पे लेके जाके इम्प्लीमेंट भी करना है. एंड स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी जो किड्स विथ मोबाइल जो सर ने बोला, आप प्लीज़ उस चीज़ पर ध्यान दीजिए. एंड थैंक यू सो मच. आई वुड लाइक टू कॉल तृप्ति संखे मैम ऑन द स्टेज and share few words. And share few words and enlighten our audience. श्री गणेश नर्सरी का ये एक परिवार है और सभी परिवार आज अपने बच्चों का कार्यक्रम यहाँ देखने के लिए आए हैं. मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी नर्सरी में इसी श्री गणेश नर्सरी से उसने शुरुआत की थी. हम अगर घर में कोई भी पेरेंट्स अपना बच्चा जब भी छोटा नर्सरी में जाता है ना, एक डांस पे उसको परफॉर्मेंस सिखाएंगे, कोई माँ नहीं सिखा सकती. इस जगह पे अपने बच्चे जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं ये टीचर की बहुत बड़ी मेहनत होती है. आप एक दिन में बच्चे का परफॉर्मेंस नहीं बिठा सकते, इसलिए आप मैं मैडम को धन्यवाद कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह से बिठाते हैं. जब मेरी बेटी ने परफॉर्मेंस किया था तो मुझे भी ये क्या कि मैं अपने बच्ची को नहीं सिखा पाई, लेकिन वो स्टेज पे डांस परफॉर्मेंस कर सकती है, ये बहुत बड़ी बात है. और जब भी सभी बच्चे जब भी छोटे होते हैं तभी माँ और पिताजी तो काम पे, लेकिन माँ की जिम्मेदारी है कि उसको अच्छी बातें बता सके. अपने पास मोबाइल होता है, मोबाइल का यूज़ माँ जिन्होंने जैसे एक पहली महिला डॉक्टर थी आनंदीबाई जोशी, ऐसे जो जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य, उनकी स्टोरीज अगर हम बच्चों को बचपन से ही सिखाएंगे तो बच्चों उनके दिमाग में वही रहेगा. अगर बच्चों के दिमाग आप सामने टीवी पे अगर कोई भी ऐसा गाना, वेस्टर्न गाना अगर लगाते बैठेंगे या पिक्चर्स जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, तो बच्चा वही जो सामने आता है वही सीखता है. तो माँ की जिम्मेदारी ये होती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा वो बचपन से दे, जो अपने गुड वैल्यूज़ होते हैं, बैड वैल्यूज़ होते हैं, वो उनको समझाए. यही इतना मैं कहना चाहती हूँ. और जो सभी बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो बहुत अच्छा है और मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से ही परफॉर्मेंस सब बिठाए होंगे. और सभी को मेरा धन्यवाद.
Thank you, ma'am. बिफोर मूविंग ऑन, हमारे साथ और हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं. सो पुट योर हैंड्स टुगेदर as we invite Anand Thodi, the Sarpanch of Saravli Gaon, and his friend along with us. लड्डू जिनका भोग है, मूषक है सवारी, सुख करता दुख हरता जग पालनकारी. द रीज़न दैट हमने हमारे प्री स्कूल का नाम श्री गणेश रखा है इज़ दैट गणेश जी इज़ नॉट ओनली बिकॉज ही सिम्बलाइजेज विजडम, इंटेलेक्ट एंड प्रॉस्पेरिटी, बट ऑल्सो क्या आपने सभी ने नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों के फेवरेट गॉड गणपति बप्पा ही होते हैं. सो बचपन से सारे बच्चों ने बाल गणेश की ही मूवी देखी है और फिर वही उनके सबसे फेवरेट मूवी हो जाती है. देयर आर मैनी क्वालिटीज़ जो हमारे बच्चे लॉर्ड गणेश से सीखते हैं, जैसे कि उनकी जो बिग ईयर्स होती है, दैट सिम्बलाइजेस दैट हमें हमेशा एक गुड लिसनर होना चाहिए. लॉर्ड गणेशा जो एलिफेंट का हेड होता है उनका, that symbolizes that he is very dutiful and obeyed his parents no matter what. क्योंकि वही चीज़ जो एक स्टोरी थी कि लॉर्ड गणेशा ने अपने मॉम की बोली हुई चीज़ इतनी हट करके मान ली थी कि उनने अपने पापा शिव जी के भी सामने वो नहीं झुके थे, और इसी वजह से उनका सर धड़ से अलग हो गया था और फिर उन्हें एलिफेंट का एक हेड लगाया गया था. लॉर्ड गणेशा से हम और यह सीख सकते हैं कि कैसे हम हम्बल और रिस्पेक्टफुल रहे, बिकॉज इवन दो हमारे लॉर्ड गणेशा इतने ह्यूज है फिजिक में, वो फिर भी उनका मूषक ही सवारी है. सो यही पोर्ट्रे करने के लिए दैट हाउ मच किड्स लव लॉर्ड गणेश, हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज devoted to Lord Ganesha. Please put your hands together and encourage our little kids for our next song, Vignaharta. बहुत ही
एनर्जेटिक परफॉर्मेंस होने वाला है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है उनको सेट होने के लिए। हम लोग ऑलमोस्ट 1 मंथ से प्रैक्टिस ले रहे हैं फॉर एनुअल डे, एंड ये अभी फाइनल परफॉर्मेंस होता है। सो ऑब्वियसली सारे टीचर्स को और इनफैक्ट बच्चों को ऐसा लगता है कि ये जो टाइम के लिए हमने इतना 1 मंथ प्रैक्टिस किया है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सो फॉर दैट परफेक्टनेस इसलिए हमको थोड़ा ये डिले होता है बीच में। सो पेरेंट्स शुड कोऑपरेट विद दैट, क्योंकि उसी एक 5 मिनट्स या 7 मिनट्स के परफॉर्मेंस के लिए ही हमने 1 मंथ की प्रैक्टिस की है। सो ये इतना तो डिले बनता है, करेक्ट? यस। सो आई गेस वी आर ऑल डन एंड रेडी टू सेट द स्टेज ऑन फायर। विघ्न हरता हे बप्पा विघ्न हरता, सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता है। द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हरे। विघ्न हरता है बप्पा विघ्न हरता, लग तेरा है माथे पे जिसके भी निखरता, कर्म की कसौटी पे है खरा उतरता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हरे। रे बप्पा तू सृष्टि को जगाता है, रे बप्पा तू संगति कराता है, रे बप्पा तू रे बप्पा रे बप्पा रे बप्पा रे बप्पा रे। नाम जो तेरा दिल से पुकारे, उसकी लगी है नैया किनारे। जब जब बाजे बाजे ढंका तेरा बप्पा, ढंका तेरा बप्पा, ढंका तेरा, बढ़कर बदकिस्मतों की तू बिगड़ी सवारे। हे विघ्न हरता है बप्पा विघ्न हरता, विघ्न हरता हे बप्पा विघ्न हरता, विनाश पाप का हो तू पग जहाँ पे धरता, भजन तेरा तमस में भी है प्रकाश भरता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हरे। रे बप्पा तू सृष्टि को जगाता है, रे बप्पा तू सर्वति कराता है, रे बप्पा तू भाग्य का विधाता है, रे बप्पा रे बप्पा रे बप्पा रे बप्पा रे। गणपति बप्पा। ये डांस के पेरेंट्स प्लीज बैक स्टेज आके बच्चों को ले जाएं। विघ्नहर्ता डांस के पेरेंट्स प्लीज बैक स्टेज आके बच्चों को ले जाएं, और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज पीछे से जाइए। Next we have prize distribution, and I would like to call
dignitary respected Anand Dhori sir on this stage for the prize distribution. First, we will be starting for the drawing competition prizes for the batch 1 in Dream City. So Reva Paval secure first positions. तालियां बजती रहनी चाहिए पेरेंट्स. रोहिणी Monarchy secure second position. And Shrivansh Yadav secures third position. Rohini Monarchy secures second position. Shrivansh Yadav secures third position. For batch 2, we have Anabia Rahman securing first position in the drawing competition. तालियां कम पड़ रही है पेरेंट्स. बच्चों के लिए ड्राइंग जितना हमें लगता है उससे ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि जो उनकी छोटी छोटी उंगलियां होती है उनमें से उनको कंट्रोल करना क्रेयॉन को, फिर वो स्ट्रक्चर में कलर करना और वो मूवमेंट में कलर करना, वो ज़्यादा ट्रिकी होता है. सो इनके लिए और आपको ज़्यादा तालियां मारनी चाहिए. हेलो, अभी सिर्फ 7:45 बजा है, इतने जल्दी भूख नहीं लगना चाहिए. तालियां जोर से. ज्ञान ठाकुर secure second position. तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए पेरेंट्स. For the batch 3, we have तालियां Swagata. बजाइए, नहीं तो बच्चा यहीं खड़ा रहेगा. For batch 3, we have Swagata Kokare at the first position. Swagata Kokare. And Naman Patel secures second position. Naman Patel secures second position. जोरदार तालियां, जोरदार तालियां. इतने छोटे बच्चे अभी से कंपटीशन सीख गए. For batch 4, we have Arnav Tiwari at the first position. Arnav Tiwari at first position, and batch 5th we have Yash Sharma at first position. जोरदार तालियां बजाइए. Next we have Saidham branch drawing results. Batch 1 we have Prisha Rane at first, Manch Sankhe at second, Avika Yadav at third position.
Rana first position, Manch Sankhe second position, and Avika Yadav third position. जोरदार तालियां नन्ही सी मुन्नी के लिए। पेरेंट्स तालियां, नहीं तो आगे प्रोग्राम नहीं होगा। इधर बच्चे खड़े रहेंगे, मैं इधर खड़ा रहूंगा। Avika Yadav third position. Avika Yadav जोरदार तालियां अविका के लिए। For next batch, we have Ritvi Singh securing first position, Ved Patil at second, and Sanvi Shinde at third. Ritvi Singh at first position, Ved Patil at second position, and Sanvi Shinde at third position. ऋत्वी के लिए जोरदार तालियां। पेरेंट्स तालियां बहुत कम बज रही है। Second batch we have Satyam Singh Yadav at first, Adhiraj Patil second, and Vipra Matre third. तालियां बजाइए बच्चों के लिए। पेरेंट्स देखिए कितना अच्छे से मेकअप करके आई है। Adhiraj Patil second position. For next batch, we have Shaurya Ghadge at first position. Shaurya Ghadge at first position. For next batch, we have Anubhava Kushwaha at first position. Anubhav Kushwaha at first position. For next, we have Aruhi Maiti securing first position. तालियां बजाइए पेरेंट्स। आरोही के लिए जोरदार तालियां। आरोही के लिए जोरदार तालियां। Next, we have Yashwant Shishti batch prize distribution. For the first batch, we have Priya Yadav securing first position. Rivanshi Kharanga second position, and Ravi Patil at third position. It's Ravi Patil, sorry, my bad. Ravi Patil securing third position. Priya Yadav first, Rivanshi Kharanga second, and Ravi Patil third.
प्राइज लेने के लिए एकदम दौड़ के आ रहे हैं बच्चे। तालियां बजाइए छोटे से मुन्ने के लिए। For the next batch, we देखिए। have Lavanya Akhade at first position, Nishita Raj at second position, and Mishika Biswas at third position. लावण्य के लिए जोरदार तालियां। तालियां जोर से बजनी चाहिए पेरेंट्स। Nishita Raj at second and Mishika Biswas at third. For next, we have Anand Desai at first, Rudra Rambade at second, Adhira Kumari at third. Anant Desai at first, Rudra Rambade at second, and Adhira Kumari at third. This Rakhi, we also had Rakhi making competition, and the winner for this is Avni Maheshwari, who secured first prize. Avni Maheshwari secured first prize in Rakhi making competition. We have Adira with us. Adira secured third prize in drawing competition. जोरदार तालियां पेरेंट्स। बच्चों को जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए। बहुत मेहनत करके कंपटीशन जीतते हैं बच्चे। We have next winner Yagyavardhan for Rakhi making competition. We have Avni Maheshwari who secured first prize in Rakhi making competition. Yagyavardhan. We have Yagyavardhan with us who secured first prize in Rakhi making competition. यज्ञ के लिए जोरदार तालियां पेरेंट्स। तालियों की बहुत कमी पड़ रही है। रोज तो बजाने को हम बोलते नहीं, एक दिन बजाने को बोल रहे हैं, उसमें क्यों कंजूसी। We have Rudra Rambade who secured second position in Yashwant Shushti Rakhi and Thali making competition. We also have Anand Desai who secured first position in Rakhi and Thali making. We have Rivanshi Kharanga who secured second position in coloring competition. तालियां बजाइए पेरेंट्स। आपने देखा होगा रामदेव बाबा का प्रोग्राम, उसमें वो बोलते हैं तालियां बजाएंगे ना तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है, अपना हार्ट बहुत मजबूत हो जाता है, इसलिए जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, बच्चों ये के लिए इनडायरेक्टली आपका एक्सरसाइज हो रहा है, ऐसा समझिए। here we are done with the prize distribution.
बच्चों को अभी प्राइज़ मिला है, जिन लोगों के बच्चों को, वो प्लीज़ बैक स्टेज आके प्राइज़ ले लीजिए उनसे, और उनका अभी डांस बाकी है तो सिर्फ प्राइज़ ले लीजिए, क्योंकि फिर हमें अभी रखने प्रॉब्लम होगा। सो जिनके भी बच्चों को अभी प्राइज़ मिला है वो बैक स्टेज आके अपने बच्चों से प्राइज़ ले लीजिए। Good evening, everyone. My name is Dipansila Oza. My school name is Sri Ganesh Peri School. My principal name is Mrs. Sangeeta Saul. It is a beautiful day. हम सबसे सरल चीज़ों में खुशी और खुशी खुशने के बारे में एक गीत है जो सकारात्मकता और हमारे चारों ओर मौजूद सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करता है। थैंक यू। वेरी गुड देवांश। नेक्स्ट सॉन्ग से हमारे बच्चे ये प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि भले ही हमारे पेरेंट्स एंजॉय करना कर रहे हो, बट ये लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज नेक्स्ट सॉन्ग इज डिस्क्राइबिंग दैट व्हाट अ गुड टाइम दे आर हैविंग परफॉर्मिंग फॉर यू गाइज। एंड आप लोग ताली में इतनी कंजूसी कर रहे हो, बस देखना है, बैठ के देखने में भी आलस आ रहा है। सो एक ज़ोरदार चलो वार्म अप हो जाता है। बहुत देर से शांत बैठे हो, एक वार्म अप कर लेते हैं बहुत ज़ोर से, जितना ज़ोर से हो सके उतना ज़ोर से मुझे तालियों की आवाज़ आनी चाहिए। गो। सो दिस प्रूव्स कि आप कर सकते हो, बट आप कर नहीं रहे हो तालियां ज़ोर से, है ना? तो हर बार हर परफॉर्मेंस के बाद मुझे इतनी ही ज़ोर से तालियां सुनाई देनी चाहिए। ओके पेरेंट्स, सो आवर नेक्स्ट सॉन्ग इज़ सच अ ब्यूटीफुल डे, एंड ये इनका डे का रूटीन बताते हैं कि कितने वो खुशी से पढ़ते हैं, कितने वो खुशी से जंप करते हैं, कितने वो खुशी से बेफिक्र होके जो उनको चाहिए वो करते हैं। क्या आप सभी ने कभी एक चीज़ नोटिस की है कि जब हम छोटे होते हैं तब हमारे लाइफ में कोई वरी नहीं होती, या फिर हमें ये चिंता नहीं होती है कि अरे घर पे जाके होमवर्क करना होगा, ये करना होगा, कैसे करेंगे, या फिर अगर मुझे एक बाइक पसंद आ गई है, ये एक टॉय पसंद आ गया है, तो फिर ये नहीं सोचते हैं वो कि अब मुझे टॉय कैसे लाएंगे पापा, कैसे जाएंगे लाने। ये सब हम बड़े होके सोचते हैं। जब बच्चों का आप मेंटालिटी देखोगे तो वो बस इतना बोलते हैं कि मुझे ये टॉय पसंद आया, मुझे ये टॉय चाहिए। अब आप कैसे भी लेके आओ मम्मी पापा, मुझे ये टॉय पसंद आया, मुझे ये चाहिए। ये बहुत ही सिली साउंड करता है, बट अगर आप इसको डीप मैनर में देखोगे तो जैसे हम बोलते हैं कि जब भी हम बड़े होते हैं वी शुड हैव आवर इनर चाइल्ड, वी शुड कीप आवर इनर चाइल्ड अलाइव।
वो यही चीज़ होती है कि भले ही हम कितने बार गिरे या भले ही हमारे मम्मी पापा नहीं ला के दे हमें टॉय, पर फिर भी बच्चे फिर से ज़िद करेंगे और बोलेंगे मुझे ये पसंद आया, आप लेकर आओ। उन्हें ये नहीं पता होता है कि पापा कैसे लाएंगे, क्यों लाएंगे, इतना जाना पड़ेगा दूर, उतना दूर जाना पड़ेगा। ये सब वरीज हम बड़े होने के बाद सोचते हैं। तो हमें बच्चों से ये सीखने मिलता है कि जो हमें चीज़ चाहिए, इनफैक्ट इन लाइफ ऑल्सो, बस उसके पीछे लग जाओ। वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे कौन लाएगा, ये सब सोचने के लिए नहीं ज़रूरत है। बस जो चाहिए उसके पीछे लग जाओ। सो दिस फिलॉसफी जो हम छोटे बच्चों से सीखते हैं, सो दिस इज़ वॉट चाइल्ड लाइक बिहेवियर मीन्स। सो आवर नेक्स्ट सॉन्ग इज सच अ ब्यूटिफुल डे प्रेजेंटिंग टू यू। I like to lay in the grass and look up at the sky, watch the clouds above and search for a rainbow. I see a kite fly by and I say hi. Hello kite! Come on and spread your wings so we can take flight. Then I fly, fly, fly like a kite. I feel strong, strong, strong as a tiger, and as big, big, big as a giraffe. So high, 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 and I jump, jump, jump like a kangaroo. Swim, swim, swim. I come up to you. I take your hand if that's okay. And I say, such a beautiful day, such a beautiful day, such a beautiful day, such a beautiful day. Then I fly, fly, fly like a kite. I feel strong, strong, strong as a tiger, and as big, big, big as a giraffe. So high, 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 and I jump, jump, jump like a kangaroo. Swim, swim, swim. I come up to you. I take your hand if that's okay. And I say, such a beautiful day, such a beautiful day, such a beautiful day, such a beautiful day. Then I fly, fly, fly like a kite. I feel strong, strong, strong as a tiger, and as big, big, big as a giraffe. So high, 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 and I jump, jump, jump like a kangaroo. Swim, swim, swim. I come up to you. I take your hand if that's okay. And I say, such a beautiful day, such a beautiful day, such a beautiful day, such a beautiful day. Then I fly, fly, fly like a kite. I feel strong, strong, strong as a tiger, and as big, big, big as a giraffe. So high, 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 and I jump, jump, jump like a kangaroo. Swim, swim, swim. I come up to you. I take your hand if that's okay. And I say, such a beautiful day, such a beautiful day, such a beautiful day, such a beautiful day. Such a beautiful performance on a beautiful night. Very good. नेक्स्ट, जो भी पेरेंट्स ने फैशन शो में अपने बच्चों के साथ पार्टिसिपेट किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बैक स्टेज जाइए अभी। आई रिपीट, जो भी पेरेंट्स ने फैशन शो में पार्टिसिपेट किया है वो अभी के अभी बैक स्टेज प्रेजेंट हो जाइए। Women empowerment refers to making women powerful
to make them capable of deciding for themselves. Women have suffered a lot through the years at the hands of men. In earlier centuries, they were treated as almost non-existent, as if all the rights belonged to men, and even something as basic as voting. As women, we were not allowed to even make decisions for them. Women empowerment came in like a breath of fresh air. It made them aware of their right and how they must have made their own place in society rather than depending on a man. Almost every country, no matter how progressive, has a history of ill-treating women. In other words, women from all over the world have been rebellious to reach the status they have today. Women discrimination जितना अभी हमें दिखता है उससे कई ज़्यादा पहले था, क्योंकि बहुत ही rebellious ladies and बहुत ही powerful women हमारे histories में present थी, जिनने बहुत सारी चीज़ें करी और बहुत सारी चीज़ों के लिए लड़ी है जो हम वो आज करते होंगे बिना दो चीज़ भी सोचे। वो चीज़ उस टाइम पे उनको करने के लिए लड़ना पड़ता था जो हमें अभी करने के पहले सोचना भी नहीं पड़ता। जैसे कि पहले के ज़माने में अगर हमें कोई लेडी को वॉशरूम यूज़ करना होता था तो वो उन्हें कहीं दूर जाना पड़ता, या तो कहीं अलग सबसे हटके, या फिर किसी को बता नहीं सकते कोई मेल को। बट उसी चीज़ के लिए अभी हम एज अ फीमेल हमारे घर पे अवेलेबल है वॉशरूम। तो ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं और हमें अभी यूज़ करने में कुछ एक थॉट भी नहीं लेते हम कि अरे वॉशरूम आ रहा है, ये कुछ नहीं। बट उस टाइम पे ये छोटी सी चीज़ करने के लिए भी उन्हें बहुत स्ट्रगल या फिर बहुत एक रेबेलियस एटीट्यूड रखना पड़ा था, बहुत ही फाइट करा था। ये तो बहुत छोटी बात हो गई। बट जैसे जब हम हमारे ग्रैंड मदर्स या ग्रेट ग्रैंड मदर्स से हम अगर बात भी करते हैं, या फिर उन्हें भी अभी लगता होगा कि अभी लाइफ कितना चेंज हुआ है या अभी सोसाइटी कितनी चेंज हुई है। मैं ये नहीं बोल रही कि अभी भी हमारे हर जगह इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट और हर चीज़ से लोग वाकिफ़ है, बट हम पहले से काफ़ी अच्छे स्टेज पे है और अभी भी वो चीज़ काफ़ी आगे हमें लेकर जानी है। तो हम विमेन को एम्पावर करें कैसे, ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे बेसिक चीज़ तो विमेन एम्पावरमेंट की ये है कि उन्हें बेसिक एजुकेशन देना, ताकि जब वो बड़ी हो जाए तो उन्हें कोई अपने मेल या फिर उनके हस्बैंड इन पे निर्भर ना करना पड़े, खुद की लाइवलीहुड वो खुद से देख सकती है। तो ये चीज़ कब होगा, जब उसके पास एक बेसिक एजुकेशन होगा। तो बेसिक एजुकेशन इज़ द वेरी फर्स्ट की फॉर द विमेन एम्पावरमेंट। एक स्टोरी आती है सुधा मूर्ति की। अगर आप वाकिफ़ नहीं है तो सुधा मूर्ति एक बहुत ही बड़ी फिलॉन्थ्रोपिस्ट है, एंड जो इन्फोसिस कंपनी, अगर आप जानते होंगे, इन्फोसिस आईटी एक कंपनी है जिनकी वो मालकिन है। तो सुधा मूर्ति जब वो 1960s में उनने अपनी एजुकेशन, 1970s में उनने अपनी एजुकेशन की थी, तो उनने वो ज़माने में भी एमटेक इंजीनियरिंग करा था और वो ज़माने में भी उनने एमटेक करा था। तो भले ही उस ज़माने में ज़्यादा लड़कियों ने नहीं किया, या फिर बहुत लड़कियों को तो पता भी नहीं होगा या घर पे अलाउ नहीं होगा, बट जब हम सोचते हैं ना कि हमारे घर से एक लोगों ने कर लिया तो क्या ही डिफरेंस बनता है। बट इससे ये पता चलता है कि स्टार्ट तो आप एक ही जगह से करोगे, करेक्ट, तो अपने घर से ही क्यों नहीं। और हमें ये चीज़ पता नहीं चलती, बट वी हैव द बिगेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस टू आवर चिल्ड्रन। मतलब हमारे छोटे बच्चे टीचर्स, पेरेंट्स या उनके आजू बाजू जो भी बड़े लोग हैं उन्हीं को तो देख के है वो सीखते हैं चीज़ें। तो अगर हम उनको यही छोटे एज से विमेन इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में अगर अवेयर करवाएंगे तो यही तो हमारे फ्यूचर जाके बनेंगे आगे। सो इट विल बी अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर आवर नेशन। सो कंक्लूडिंग माई स्पीच, आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन the next deadliest performance, which is on the women empowerment and showing you that this is the new women, these are the new women of our new nation. Thank you.
teacher and dear student. My name is Sai Ganesh Gun. My school name is Shri Ganesh Preschool. Today we are celebrated 21st annual day. यह हमारी दुनिया है, हम इसी में जीते हैं. हम तो खुशी में सिरोही में दर्द गम पीते हैं. अपना अंदाज़ा है यारो सारे जहाँ से जुदा. थैंक यू. Girls, we run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Girls, who run the world? 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 Girls, who run this mother? Who run this mother? Who run this mother? Who run this mother? Who run the world? Who run the world? Girls, who run the world? Who run the world? Girls. Some of them men think they freak this like we do, but no they don't. Make your check come at their neck. Disrespect us, no they won't. Boy, don't even try to touch this. Boy, this beat is crazy. This is how they made me. Houston, Texas, baby. This goes out to all my girls up in the club, rocking the ladies. Who would buy it for themselves and get more money later? I think I need a barber. None of these niggas fight me. I'm so good with this. I remind you I'm so hood with this. Boy, I'm just playing. Come here, baby. Hope you still like me. Hey, me. My persuasion can build a nation. Endless power. Without love, we can devour you. Who run the world? Girls. Buddy, oh boy, make a big nice thing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, a big disgrace. Kicking your can all over the place, singing we will rock you. Singing we will rock you. Buddy, you're a young man, hormone showing in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace. Waving your banner all over the place. We will rock you. Singing we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you some peace someday. You got mud on your face, you big disgrace. Somebody better put you back into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. Rock you, rock you, rock you. Woo! Everybody, we will rock you. Sing it. We will rock you. We will rock you. What a lovely performance. कैसी लगी आपको ये रॉकिंग परफॉर्मेंस?
ये डांस के पेरेंट्स बैक स्टेज आके बच्चों को कलेक्ट कर लीजिए. Our country has 740 different languages spoken all across the 28 states and 8 union territories. This diversity is celebrated in the country's motto, which is Unity in Diversity, which highlights the importance of coming together despite our differences. But unity in diversity is not just about celebrating and embracing differences. It is also about respecting and understanding them. It is important for us as parents and even as teachers to teach our students about the diversity in cultures. If they are taught from such young age, then it will be the making of future leaders of our nation, well aware and educated. Our next coming up event is very different और कुछ बहुत ही हटके है. It is a fashion show but with a twist. Our little cute toddlers along with parents are geared up and will be showcasing various cultures representing different states and union territories. So put your hand together for kids and also their parents for our next fashion show.
mother and children duo. Good evening, everyone. My name is Sathi Singh. This song is belong for spreading love and care. Lord Krishna teaches us that everything happens for reason. Mukunda Mukunda Krishna Mukunda Mukunda, meaning it is, oh Lord, thank you so much for giving this beautiful life. The moral of this song is we are the puppet that God control. Presenting a dance performance by Junior KG, Mukunda Mukunda, a favorite song of Little Krishna and Radha. Let's welcome them. अगर आपसे सवाल किया जाए कि भारत की पहचान किस चीज़ से की जाती है तो उनमें से एक जवाब आपका होगा भारतीय सांस्कृतिक नृत्य। जी हाँ, नृत्य भारत में एक ही प्राचीन और सांस्कृतिक परंपरा है। अब हमारा अगला नृत्य है भरतनाट्यम, जो 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। भरतनाट्यम हमारा अगला परफॉर्मेंस है भरतनाट्यम, जो 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। भरतनाट्यम भारत के प्रमुख शास्त्रीयों के नृत्यों में से एक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारी सबसे पुरानी कला अपने नए अंदाज में ये छोटे बच्चे कैसे करते हैं। धन्यवाद।
खुशबू